Hi dearies, how are you all doing? Hope you're doing good. Welcome to Prati's Kitchen. Firstly, wishing you all dearies a very happy Raksha Bandhan. Hope you're all celebrating your Raksha Bandhan with your dear siblings. And from Prati's Kitchen, how can I just not post something on this special occasion? So today I've bought the Tej and Raksha Bandhan special Rajasthani cuisine called Ghevar. So many of y'all must have tried the Malai Ghevar or the Ghevar with the rabdi topping and all. So today I'll be showing you how to prepare a simple, a very easy procedure to learn to make a jalidar Ghevar and the toppings. So today I'm going to be showing you two toppings. One is with rabdi, which is absolutely instant and very quick to make, and then this one is the custard cream topping, which is, oh my god, it just melts in your mouth. Trust me, kids just love this custard cream topping because ये इतना light कर देता है ना आपके इस dessert को. This is the lightest version we felt and the most exotic too. तो आप मतलब बिल्कुल एक तो बेकस के स्टाइल में बनाएंगे और एक बनाएंगे हम हलवाई स्टाइल. तो मैं आज आपको बताऊंगी दोनों तरीके की टॉपिंग एंड ट्रस्ट मी, you'll really love it. So let's get into cooking and get into business. तो सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी, इंस्टेंट रबड़ी. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध. आप कोई भी दूध ले सकते हैं, होल मिल्क या टोन्ड मिल्क. इसमें मैंने ऐड किया है हाफ अ कप ऑफ शुगर, विच बेसिकली इज अबाउट से 10 to 12 टेबल स्पून ऑफ शुगर. एंड इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा बॉयल होने देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे. सो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है और आप ये देख रहे हैं इसमें उबाल आने लगेगा, दिस इज द स्टेज दैट यू विल ऐड योर ड्राई फ्रूट्स. इफ यू वांट टू ऐड ड्राई फ्रूट्स, डू ऐड योर ड्राई फ्रूट्स और 1 tablespoon of ठंडाई premix. Now इससे अच्छा quick fix क्या हो सकता है? Like literally this is the best substitute for adding dry fruits because this itself has lot of dry fruits. आप इसकी रेसिपी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड. आप प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि वाइट ब्रेड ही लें बिकॉज आपकी रबड़ी अगर वाइट कलर की बने तो आप वाइट ब्रेड ही लें. वी वर अ बिट कॉन्शियस, सो आई वॉज टेकिंग आई यूजुअली टेक ब्राउन ब्रेड, बट आप प्लीज़ वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करें. 2 स्लाइस and chop off the sides, just knock it off, we don't want the hard part. and उसको अच्छे से आप या तो coarsely grind कर लें या powder. and now add it to the milk and give it a nice stir and cook it until it thickens up. once it is thickened, keep it aside in the refrigerator to cool down. Now we'll be preparing the custard cream recipe. So for custard cream recipe, I am taking about 5 tablespoons of custard powder, regular custard powder. To it, I am adding about approximately 3/4 cup of milk. It's a normal chilled milk. So just add it and give it a good mix and keep it aside. Now we will take a pan. You must be knowing your regular custard recipe. You have to just cook the same way. The only tip is the only difference is you'll be taking extra custard powder to get a थिक कंसिस्टेंसी. तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, हाफ कप शुगर इसमें डाल दिया है. ये अच्छे से जब मिक्स हो चुका था इसमें मैंने वो कस्टर्ड मिक्स को ऐड कर दिया. बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यूर टर्निंग ऑफ योर गैस स्टव एंड देन गिविंग इट अ गुड मिक्स सो दैट देर आर नो लम्स बिकॉज इट थिकन्स वेरी क्विक. सो जस्ट टर्न ऑफ द फ्लेम एंड ये जो हीट ऑलरेडी पैन में है इसी में आपका थिक होना शुरू हो जाएगा. सो बेसिकली गिव इट अ गुड मिक्स, मेक श्योर देर आर नो लम्स एंड वंस यू आर डन यू विल सी दैट सिल्की स्मूथ consistency. At this stage, if you want, you may add a teaspoon of ghee or butter to give it a glazed look, shiny look. I haven't added, but if you'd like to, you may please add about a teaspoon of butter or ghee. Transfer the whole custard into a bowl and let it cool down. So put it in the refrigerator for 10 minutes so that it just cools down before we mix the cream into it. Now let's prepare our ghevar. So ghevar के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, घी और दूध और थोड़े से बर्फ से और मैदे से बन जाएगा. तो यहाँ पे मैंने लिया है कम से कम 5 से 6 बर्फ. तो आपको बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है. सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ नॉर्मल घी, नॉर्मल टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून घी. मतलब आपको लेना है 4 टेबल स्पून घी in your mixer jar. Add about 5 cubes of ice to it. Now we'll give it a good blend. So just give it a good blend and see this is how it solidifies. So जब आपका ऐसा मतलब एक कंसिस्टेंसी में ग्राइंड हो जाए एंड व्हेन द आइस एंड घी मिक्सेस वेल टुगेदर एंड देयर आर नो आइस लेफ्ट, देन वी विल स्टार्ट एडिंग द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट. बट यहाँ पे अब हमारा आइस का पीस और भी मतलब ठीक से मिला नहीं है, तो मैं एक और ग्राइंड इसको कर लूँगी जब तक ये अच्छे से थोड़ा बहुत सॉलिडिफाइड ना हो जाए. तो यहाँ पे ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मेरे घी का, ये बिल्कुल बटरी लग रहा है. सो add
this stage I will add little milk. Now totally in this particular recipe I'll be taking 1 cup of milk, 1 cup of मैदा. पहले थोड़ा सा मैंने दूध डाला, about 4 से 5 टेबलस्पून, अच्छे से ग्राइंड कर लिया और थोड़ा दूध डाला. अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 से 6 चम्मच मैदा के. तो ये मैदा इसमें गया, इसको अच्छे से चर्न कर लें, अच्छे से ग्राइंड कर लें. ये द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राइंडिंग इट in batches is to just make sure there are no lumps and it is perfectly blended. तो यहाँ पे मैंने जो मैदा था बाकी सारा कुछ डाल दिया, जो दूध बचा था वो भी डाल दिया और इसमें थोड़ा सा मैंने कोल्ड वाटर ऐड कर दिया. तो you in the entire recipe just make sure until we start making our ghevar your batter has to be cold and chilled. Doesn't matter if it is not very cold during the process, entire process finishes, but when you start with it make sure it is cold. So to keep it cold and chilled you have to make sure that आप एक पतीला ले रहे हैं, उस पतीले में नीचे खूब सारा आइस क्यूब्स डाल देंगे, उसके ऊपर आपके इस बैटर का पतीला रख देंगे and that's as simple. So throughout the procedure, entire procedure, your batter will be cold enough. Do not worry about refilling it once it is the ice cubes melts. You don't have to worry. Even normal temperature में भी ghevar तो बन ही जाएंगे. So just make sure that you keep the ice cubes at least in the beginning and the batter vessel goes inside it. So अब ये इस कंसिस्टेंसी में आपको बैटर मिलाना है, इतना पतला as your buttermilk. तो buttermilk की कंसिस्टेंसी की बैटर आपको बनानी है बिल्कुल पतली. The way it is dripping when I pick up the ladle, that should be the consistency. So ये पतला होगा डोसा बैटर से बिल्कुल छाछ के कंसिस्टेंसी में. तो अब हम हमारे घेवर को बनाते हैं. घेवर को बनाने का तरीका तो खैर आप पैन में भी बना सकते हैं, कोई बर्तन में बना सकते हैं, जिस साइज़ का आपको चाहिए उस साइज़ का बर्तन लेके आप बना सकते हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि इसकी ओपनिंग जो ये इसका जो माउथ है इस वेसल का वो आउटवर्ड हो ताकि आपके घेवर को पुल आउट करने में आसानी हो. सो जस्ट टेक अ वेसल, हाफ लेवल तक आप अपना ऑयल फिल करेंगे बिकॉज दिस अगेन बबल्स अप एंड वैसे तो आपकी गैस स्टव की हालत बहुत ख़राब हो जाती है. आई नो लॉट ऑफ क्लीनिंग अ प्रोसेस लेटर बट इट्स ऑल वर्थ इट. तो यहाँ पे एक लैडल का इस्तेमाल किया मैं एक चम्मच से ही आज आपको बता रही हूँ इसमें फर्स्ट प्रोसीजर में. सेकेंड प्रोसीजर में मैं आपको स्क्वीज़र के हेल्प से बताऊँगी. आई मेड द एंटायर थिंग विद द स्क्वीज़र. इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट एंड नॉट टू मैसी. तो ये मेरा पहला घेवर बन गया. नॉर्मल स्पून से आप ऐसे उठाएंगे डालेंगे. Now this is the second procedure where I'm going to be using a squeezer, but you have to make sure your squeezer, when you try to squeeze in with force, you make sure you're just keeping a little distance away from the oil. तो पहले आप एक बैच इसको squeeze करेंगे. Just wait until the entire bubble settles down. Now this will ensure that your entire layer the amount of batter that you have dropped in is evenly cooked and वो जालीदार बन रहा है. मतलब लिटरली आपके झाले तब बनेंगे, तब अच्छे से सेटल होंगे जब आप उसको टाइम देंगे. सो बेसिकली थोड़ा करके ही आपको डालना है, एक ही दम नहीं डालना है. एंड यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि पहले आप स्क्वीज़ करेंगे या अगर चम्मच से भी डाल रहे हैं तो पहले वाला चम्मच आपने डाल दिया. जस्ट वेट अंटिल दिस बबल सेटल्स डाउन. तो आपके सेंटर में आप ये देख रहे हैं ऐसा होल बनता जाएगा क्योंकि यू आर जस्ट ड्रिपिंग एग्जैक्टली एट द पॉइंट. तो झाले भी बनते जाएंगे और आप ऐसे ही डालते रहिएगा. अगर आपका बीच का होल नहीं दिखता है तो प्लीज़ एक चम्मच लें और चम्मच से ऐसे होल बनाते रहें. तो दैट्स अबाउट इट. इतना ईजी सा था. और आपको जितना मोटा घेवर चाहिए, जितना थिकनेस उसकी वॉल्यूम आपको चाहिए, आप उतना उसको रख सकते हैं. लाइक द विड्थ आई एम सेइंग, और उतने विड्थ में आप उसको स्क्वीज़ करके यहाँ तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने फॉर दिस विड्थ आई हैव आई थिंक ड्रॉप्ड और स्क्वीज रादर minimum 10 to 12 times to get a घेवर of that thickness. तो आप जितना थिकनेस चाहिए उतना थिकनेस आप उतनी बार उसको स्क्वीज कर उतना मोटा घेवर बना सकते हैं. तो मेरे घेवर बन गए. आप चलिए निकालिए. कस्टर्ड बनाते हैं. कस्टर्ड क्रीम के लिए हमें क्या करना है, पहले कस्टर्ड को अच्छे से मैश करना है, लम्प फ्री बनाना है. इसके लिए आप या तो उसको ग्राइंड कर लें क्योंकि बहुत थिक हो जाता है आफ्टर यू पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर. तो उसको या तो आप छन्नी लें, छन्नी में अच्छे से लम्प फ्री कर लें, उसको स्क्वीज़ करके या छान लें, या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर उसमें हम अब क्रीम मिलाएंगे. So basically you have to make sure before adding your cream you make sure your custard is lump free. तो यहाँ पे मैंने 2 कप कस्टर्ड के लिए 1 कप क्रीम लिया है. सो इट्स 2:1 रेशियो. या फिर आप उतना हिसाब से लें जितना आपको क्रीम पड़े इस पे. मतलब आपको रनी कंसिस्टेंसी नहीं रखना है, थिक कंसिस्टेंसी रखना है जिसमें वो फ्लोई कंसिस्टेंसी ना हो. बिकॉज क्रीम हैज़ अ टेंडेंसी टू मेल्ट एंड बिकम लिटिल लाइटर एंड फ्लोई. सो वी डोंट वांट अ मेसी थिंग हैपनिंग देयर व्हाइल सर्विंग इट. तो आप इसको अच्छे से उतना रखें, उतना ही ऐड
करें जितना आपको द कंसिस्टेंसी इज़ लिटिल थिकर। तो यहाँ पे इस कंसिस्टेंसी का मैंने यहाँ पे क्रीम कस्टर्ड बनाया है और मैं इसको कन्वीनियंटली स्क्वीज़ करने के लिए ऑन घेवर एक पाइपिंग बैग में इसको डाल रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ चम्मच का भी इस्तेमाल करके स्प्रेड कर सकते हैं, बट पाइपिंग बैग से क्या है ना, यू कैन जस्ट गेट मोर क्रिएटिव, यू कैन मेक एनी डिज़ाइन दैट यूड वांट टू, एंड ऑल्सो इट्स लाइक हैसल फ्री, मतलब मैसी जॉब नहीं होगा। सो जस्ट डू इट दिस वे एंड और एल्स यूज जस्ट द स्पून टू काइंड ऑफ डू द टॉपिंग। चलो जी, अब मैं आपको मेरा घेवर दिखाती हूँ। जस्ट इमेजिन दिस टर्न्ड आउट सो क्यूट, सो ब्यूटिफुल, जालीदार, एंड लुक एट दैट अमेजिंग क्रंच टू इट। तो यहाँ पे अब हमें इम्पॉर्टेंट एक और रेसिपी बनानी पड़ेगी, वेरी क्विक चाशनी की रेसिपी। तो यहाँ मैंने 1 कप शुगर लिया, हाफ कप पानी लिया, वेरी सिंपल रेसिपी। 1 तार की चाशनी बनानी है तो पहले आप उसको बॉईल करेंगे जब तक आपका शुगर इसमें मेल्ट नहीं हो जाए। जैसे ही आपका शुगर मेल्ट होता है, उबाल आने लगता है, within 5 minutes just try and test। आपको जब 1 तार की चाशनी मिल जाए, जैसे कि आप टेस्ट करेंगे 1 तार बनने लगे जैसे ये बन रहा है, तब आप इसको टर्न ऑफ कर दें एंड कीप इट असाइड। लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग आ ब्यूटिफुल घेवर। तो यहाँ पे मैं पहले आपको रबड़ी के साथ अपना घेवर दिखाऊंगी। ये इंस्टेंट रबड़ी आप किसी भी व्हाट यू कॉल डेजर्ट डिश में खा सकते हैं, लाइक जलेबी एंड थिंग्स, बट आज घेवर के साथ तो मज़ा ही अलग था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाशनी स्प्रिंकल कर लिया, 4 से 5 चम्मच। उसके ऊपर से मैंने ये डाल दिया 3 से 4 चम्मच रबड़ी, और रबड़ी को अच्छे से आप स्प्रेड कर लें। आपको जितना मिठास पसंद हो आप उतना उसमें रबड़ी डाल सकते हैं लेयर। तो मैं यहाँ हल्का फुल्का डाल रही हूँ बिकॉज एज सच आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, बट ट्रस्ट मी ज़्यादा भी मीठा घेवर मज़ा नहीं आता। यू हैव टू फील द टेस्ट ऑफ एवरी टाइनी इंग्रेडिएंट गोइंग इन दैट। तो मुझे क्रस्ट का भी टेस्ट चाहिए, मुझे चाशनी का भी चाहिए, मुझे रबड़ी का भी चाहिए और ड्राई फ्रूट्स का भी। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स जो मैं टॉपिंग कर रही हूँ ये आपके मनपसंद है, आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स आप इसमें स्प्रिंकल कर लें। मैंने यहाँ पे आज बादाम एंड पिस्ताशियो का इस्तेमाल किया है। आप इसके ऊपर यू जस्ट बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। ये पेटल्स, रोज पेटल्स सूखे हुए हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। चांदी का वर्क भी आप डाल सकते हैं। यू मे जस्ट यूज बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल, बट हलवाई स्टाइल में अगर आपको सर्व करना है, दिस इज हाउ ही सर्व्स। इसके ऊपर थोड़ा सा आप सैफ्रॉन स्ट्रैंड्स भी लगा सकते हैं, यहाँ वहाँ लगा कर ना, देन जस्ट सर्व इट। सो दिस इज द क्लासिक हलवाई स्टाइल घेवर विथ रबड़ी टॉपिंग। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे हमारी कस्टर्ड क्रीम टॉपिंग वाली। आप मलाई घेवर भी बना सकते हैं, आपने टेस्ट भी किया होगा, बट ट्रस्ट मी माय फेवरेट ऑफ ऑल वाज कस्टर्ड क्रीम टॉपिंग, बिकॉज इतना लाइटर वर्जन लगता है। इट feels like an amalgamation of having a cake, or probably because once you add the chashni on it, it just kind of softens। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप सर्व कर रहे हैं घेवर, तभी आप इस घेवर को निकालेंगे एक बॉक्स से, just store it until then and do not add chashni to it। only while serving it, while topping it, add the chashni, then top it with your custard cream or your rabdi or malai, and then again sprinkle some dry fruits and then serve it। So otherwise it becomes very soft, and फिर डेजर्ट का मज़ा ही मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। and if you want that crunch and everything to be maintained while having it or serving it, then please do it only while serving it। तो ये मेरा दूसरा कस्टर्ड क्रीम घेवर बन गया। तो मैंने यहाँ पे पहले तो कस्टर्ड क्रीम की टॉपिंग की, उसके ऊपर से थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मैंने क्रीम की टॉपिंग की है। दिस इज़ अ क्रीम टॉपिंग विच इज़ वाइट इन कलर। ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दीजिए, ऊपर से सैफ्रॉन स्ट्रैंड्स और रोज पेटल्स, वट एवर यू लाइक, जस्ट सर्व इट, मेक इट मोर डिलाइटफुल एंड कलरफुल। तो ये बहुत ही मतलब इतना फेवरेट था बच्चों का, इवन माई नेबर्स, देयर किड्स, दे टोटली एन्जॉयड इट। ट्रस्ट मी, इट्स लाइक वर्थ मेकिंग वंस। dearies, do give it a try and do tell me, give me your kind feedbacks of how you liked it, and did you face any problems while making it. Trust me, there are few tips have to be followed while making घेवर. Just keep away from the gas stove while squeezing your batter into the oil, and you have to maintain a little patience because it is all about time consuming stuff। तो आप हर बार जब squeeze करेंगे टाइम देना पड़ेगा, जब तक बबल सेटल नहीं हो जाए आप सेकेंड टाइम squeeze नहीं करेंगे। So that's the only tip
to get a beautiful, crusty, jaledar, crispy ghevar. So thank you so much for watching this wonderful video, dearies, and wishing you, your loved ones, loads of happiness always. Thank you for watching Prati's Kitchen.